Hello everyone. Hi, this is Sonali, and here in this session we will be dealing more about the autotrophic mode of nutrition. So first of all, we have already seen the definition that autotrophic mode of nutrition represents that it is just made up of two words, auto and trophic. Here the auto means the self, right? So the self-dependent plant, that means they do not require the food, or we can say they do not require their food from any other organism. दे मेक देयर ओन फूड, राइट, वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म autotrophic mode of nutrition show करते हैं. So just define them, right? So the mode of nutrition is basically the mode of nutrition in which an organism synthesizes its own food by using the simple inorganic material. So those organisms which can just synthesize their food by using the extra environmental inorganic material, right? So we can just name them. These are the plants, right? Plants, green plants. We can say that the green plants and the blue green algae are the members of autotrophic mode of nutrition because they can make their own food without dependence on any other organism, right? So hence we can say that they are self dependent, right? So again, then second thing is the organism which basically show this autotrophic mode of nutrition, they are commonly called as autotrophs. So we can say that the plants and blue green algae are autotrophs. Then द थिंग इज कि ये न्यूट्रिशन, यानी कि हम क्यों कह रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, या ऐसा क्या है प्लांट्स में, या क्या उनका एक यूनिक फीचर जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में plants are relying on themselves, they do not basically require any other organism, or we can say they do not require food from any other. तो ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्या यूनिक फीचर है और प्लांट्स में, राइट? सो दिस इज बिकॉज this nutrition is accomplished by the process of taking carbon dioxide and water in the presence of sunlight and क्लोरोफिल. सो बेसिकली क्या कह रहे हैं हम कि प्लांट के पास ना एक बढ़िया सा मैकेनिज्म होता है. क्या होता है वो कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एयर, वाटर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल बाय द हेल्प ऑफ रूट्स, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब धूप के प्रेजेंस में, वो अपने प्लांट में एक क्लोरोफिल नामक ऑर्गेनली है. यानी कि हम कह सकते हैं क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज फाउंड इन every plant, right? So it is formed in basically to form carbohydrate. तो हमने कहा carbohydrate, the word represents here because it is just made up of carbon, oxygen and hydrogen. So we can say it is made up of three elements, that is carbon, oxygen and hydrogen, and carbohydrates are the basic energy source of एवरी लिविंग फॉर्म, राइट? तो बेसिकली हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, और ये प्रोसेस क्या हो रहा है, दिस इज फोटोसिंथेसिस. ओ हो, राइट, हमने ये वर्ड पहले भी सुना है. फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड, फोटो एंड सिंथेसिस. दैट मीन्स फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस इज फॉर्मेशन. So wherever there is a formation of anything or food or like the thing in the presence of light, यानी कि जब भी लाइट के प्रेजेंस में कुछ भी बन रहा होता है तो हम ये कह रहे हैं कि वो फोटोसिंथेसिस होता है. एंड मेनली ये प्रोसेस प्लांट्स में हो रहा है, एंड प्लांट्स में वी कैन से क्लोरोफिल इज परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस. सेकेंड थिंग, द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो एज वी कैन सी दैट हमने ये देख लिया कि प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है, बट हाउ द plants are basically capable of performing photosynthesis, हम ये देखेंगे. तो क्यों capable है वो? So basically the basic reason that the plants are capable of doing this is the process, right? हमने देखा कि nutrition जो है plant में they are very unique. यूनिक क्यों? बिकॉज दे हैव दैट मैकेनिज्म, बिकॉज वी कांट डू दिस. मतलब हम कह सकते हैं कि सनलाइट में मतलब कुछ नहीं दिया जाए तो हम सनलाइट से अपना खाना बनाने, नहीं, बिकॉज ये मैकेनिज्म हमें है नहीं. they are such an unique organism which is found on our earth, right? And so basically हम देखते हैं कि photosynthesis क्या है. So photosynthesis is the process by which green leaves, basically green leaves of the plant, they convert, यानी कि they convert solar energy, वो convert करते हैं solar energy को into chemical energy. So basically solar energy कहाँ से आ रहा है? This is coming from your sun. You can see in this figure, यहाँ पे sun आपका is your source of energy, and यहाँ से basically plant is absorbing the sunlight. The plant is absorbing the carbon dioxide from environment or atmosphere, and water and minerals from the root, right? And then it is removing the glucose, which is the basic energy source in the plant, and along with that there is a formation
ऑक्सीजन. सो बेसिकली वी कैन से या हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन इज अ वेस्ट. लाइक सीरियसली वर्ड सुनने में इतना अजीब लग रहा है बिकॉज ये ट्रू है. प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन इज जस्ट अ वेस्ट, बट या वी कैन से प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, बट यहाँ पे बाय प्रोडक्ट और वी कैन से एज अ वेस्ट फॉर्म हो रहा है प्लांट में. बट दिस वेस्ट इज एक्चुअली द बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ on earth, because अगर ऑक्सीजन नहीं होता there will be no organism surviving, right? So सोचो कि the life containing organisms are the plants, right? So यहाँ पे देखने वाली क्या बात है that they are using solar energy, और इन्होंने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में. तो भाई एक मिनट, क्यों किया ऐसा? वाई द प्लांट डन दिस? हम ये क्यों कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता? भाई सोलर कुकर थोड़ी ना, सोलर पैनल्स और थोड़ी ना कि सोलर एनर्जी को लेंगे और हम तो भैया 30 खान साहब. बट द थिंग इज कि सोलर एनर्जी इज कैन नॉट बी यूज्ड एज इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड. दैट मीन्स हम जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, वी ऑलवेज डील विद द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. तो वहाँ पे जब भी हम फॉर्मेशन या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कह रहे हैं तो सोलर एनर्जी इज नॉट प्लेइंग दैट मच रोल एज compared to chemical energy. So chemical energy is the form of energy which is involved in the chemical reaction. So basically हम कहते हैं कि chemical energy is involved in the chemical reaction, or you can see in this equation that we are dealing with the केमिकल इक्वेशन. सो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें केमिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. ओ भाई ये मैकेनिज्म देखो, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ यूनिक और स्पेसिफाइड टू प्लांट्स ओनली. वी कांट डू दिस और एनी अदर ऑर्गेनिज्म कांट डू दिस, राइट? सो हम ये देखते हैं. अब इन्होंने इसका इस्तेमाल कहाँ किया? इसका इस्तेमाल किया इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी कैन से वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज फोटो सिंथेसिस. अगेन फोटो इज लाइट, सिंथेसिस इज प्रोडक्शन. ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में जब भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट देयर इज बेसिकली 6 CO2 molecule यानी 6 carbon dioxide molecule which is reacting with 12 water, or we can say 12 H2O molecule in the presence of light. Light means we are requiring the sunlight, right? And in the presence of plant enzyme, or we can say chlorophyll, right? So chlorophyll is also there, which is basically हमें बताया कि क्लोरोफिल क्या है. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है प्लांट का, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखता है, राइट? अब हम ये कह रहे हैं कि जो C6H12O6 you would be seeing this, it is made up of 3 CH and O, right? That means carbon, hydrogen and oxygen, and this is a form of carbohydrate, right? Then along with that there is 6 molecule of oxygen which is released as a byproduct, and here 6 molecules of water is also released as a byproduct, right? देन हमने ये देखा, ठीक है, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, बट हम क्या कह रहे हैं कि क्या नेसेसरी कंडीशंस है? क्या ये हमेशा हो सकता है? क्या फोटोसिंथेसिस ऑल टाइम पॉसिबल है, या फोटोसिंथेसिस कुछ नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर करता है या कुछ ऐसा चीज़ें? येस, देयर आर सम नेसेसरी कंडीशंस विच इज रिक्वायर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस टू ऑकर. मतलब अगर आपको कभी भी फोटोसिंथेसिस देखना है या प्लांट कभी भी फोटोसिंथेसाइज करता है, सो इट प्राइमरीली रिक्वायर्स सनलाइट. पहली चीज़ यानी कि उसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी. क्यों ज़रूरत पड़ेगी? बिकॉज यहाँ पे आपको सनलाइट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. तो सनलाइट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी हियर, राइट? एंड दिस लाइट एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सन. सेकेंड थिंग इज द क्लोरोफिल. सो वी हैव ऑलरेडी see this word chloro means like color, right? So हम देख रहे हैं यहाँ पे कि chlorophyll is basically the pigment, right, which is present in the leaves and the stems of the plant, right, wherever there is a green portion, right? क्योंकि green portion plants में है तो it will be definitely containing the chlorophyll. And this chlorophyll is basically responsible for absorption of sunlight, और यही एक एक्चुअल साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है. क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? बिकॉज यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है और यहीं पे सनलाइट का कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी होता है. ठीक है, सो बेसिकली पिगमेंट कहाँ सिचुएटेड है? दीज आर सिचुएटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. यू कैन सी इन दिस बिलो डायग्राम दैट देयर आर सम specialized organelle, they are called as chloroplast, and they have this green pigment here. So ये जो green pigment you can see this, right? These green pigments are basically chlorophyll, right? chlorophyll कहते हैं इन्हें. Then तो
थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कहते हैं कि नेसेसरी कंडीशंस है फोटोसिंथेसिस की, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कहा कि CO2 की नेसेसिटी क्या है। You can clearly see this carbon dioxide is containing the carbon, right? And you can also just gather that wherever there is a photosynthetic reaction, यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है एंड दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंटेनिंग द कार्बन। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर से तो कार्बन आएगा नहीं, तो देर मस्ट बी अ कार्बन सोर्स। तो हम ये कहते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज द एक्चुअल कार्बन सोर्स फॉर द कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। तो हमने ये कहा कि दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस एंड दैट एंटर्स थ्रू द स्टोमाटा। करेक्ट। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर। दैट मीन्स वाटर की कहाँ इन्वॉल्वमेंट है। पहली चीज़ तो ये कि वाटर तो हमारा भैया मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है बढ़िया से, क्योंकि डिजॉल्व फॉर्म में मिनरल कैरी करता है ये। लेकिन इसके अलावा भी देयर इज अ वेरी 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 इसेंशियल रोल विच वाटर प्लेज इन द फोटोसिंथेसिस। वी विल बी डीलिंग विद दैट for now, it is just the mystery for you, right? तो अब देखेंगे कि कहाँ ये वाटर इन्वॉल्व हो रहा है हमारे इस प्रोसेस में, एंड यू वोंट बिलीव वाटर इज वेरी इसेंशियल, राइट? क्यों? क्योंकि अब हम देखेंगे, राइट? अब देखते हैं कि देख लिया हमने, चलो नेसेसरी कंडीशंस आर व्हाट एंड व्हाट एवर दीज आर देयर, बट व्हाट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या ये हर जगह पॉसिबल है या कोई स्पेशलाइज्ड लोकेशंस होती हैं प्लांट में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है? सो दैट particular place is your chloroplast. So as the name dignifies you, it is containing chloro and plast. Plast is your organelle. So an organelle which is found, कहाँ found हो रहा है? These are found in the palisade tissue. ओहो, ये नाम तो बड़ा बढ़िया है, भारी भारी सा। So ये होता कहाँ है? Basically you can see in this diagram, here is a cross section of leaf which is showing the different cells. So you can just clearly see these green cells, these barrel shaped cells. These barrel shaped cells are called as palisade cells, right? इनका एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि पैलिसेड सेल्स दिन में दो कैटेगरीज हैं, मीजोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स। यू जस्ट नीड टू नो द नेम्स, इसके बारे में ज़्यादा तुम्हें पढ़ना नहीं है। बट द थिंग इज कि पैलिसेड सेल्स ही वो प्लेस है जहाँ पर बेसिकली क्लोरोप्लास्ट सिचुएटेड होता है। अब हमने कहा क्लोरोप्लास्ट सिचुएटेड होता है, तो इस क्लोरोप्लास्ट में ही तो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल भी तो हमारा यही हुआ ना। सो दैट मीन्स palisade tissue is containing the chloroplast, and that chloroplast is containing the green pigment called as chlorophyll. So chlorophyll is where? Chlorophyll is there in the chloroplast and again in the palisade tissue. So you can see chlorophyll is there in the palisade tissue, right? Second thing, you can see in this cross section of leaf there are several layers of palisade tissue and spongy layer which contain mesophyll cells all there, right? Then third thing which you need to just focus here is, you can just see here there is a basically a small opening, right? These small opening, or you can say it is a pore through which this carbon dioxide is basically entered, right? And the oxygen is being removed. यानी कि हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक एंड ऑक्सीजन का आउटवर्ड मूवमेंट ये बेसिकली इस पोर के थ्रू हो रहा है। तो अब ये पोर है क्या? ये पोर बेसिकली स्टोमाटा कहलाता है। सो स्टोमाटा कहाँ है? स्टोमाटा इज देयर ऑन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ठीक है, सो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में ये स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल पोर्स हैं जिनको हम स्टोमाटा कह रहे हैं। एंड स्टोमाटा क्या फंक्शन प्ले कर रहा है? इट इज बेसिकली प्लेइंग अ रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो अब देखते हैं कि हमने देखा चलो साइड कहाँ है, क्या क्या हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है या क्या इसमें बेसिक प्रोसेस हो रहा है, बट हाउ इट इज ऑकरिंग इन द प्लांट, मतलब कैसे या क्या स्टेप्स है इसमें, वी विल बी डीलिंग विद दैट। सो व्हाट आर द मेन इवेंट्स इन द फोटोसिंथेसिस, ये हम अब देखने वाले हैं। तो मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, यानी कि सबसे पहले सनलाइट को अब्जॉर्ब करना है क्योंकि वहीं से एनर्जी मिलनी है। सो सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हुआ। उसके बाद ये हो किससे रहा है? ये हो रहा है बेसिकली ग्रीन पिगमेंट से। ग्रीन पिगमेंट्स आर व्हाट?
These are chlorophylls, and these chlorophylls are some specialized structure which is found again in क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, so ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं. देन सेकेंड थिंग, अब हमने भैया लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ली, अब हम कर रहे हैं उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, जो हमने पहले भी देखा कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम केमिकल एनर्जी में. तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वी आर डूइंग दिस बिकॉज अब बहुत ध्यान से सुनना, अब आएगा रोल ऑफ वाटर. यानी वाटर की ज़रूरत कहाँ थी, जो हमने कहा था कि इट इज़ जस्ट अ मिस्टीरियस थिंग फॉर यू. तो वाटर का इन्वॉल्वमेंट अब होगा. यू नीड टू सी इन दिस इक्वेशन, here is a one water molecule, you can see here, right? यहाँ पे एक water molecule है in the presence of chlorophyll, right? In the presence of chlorophyll there is light energy which is being converted into chemical energy, and this energy is utilized in breaking of water molecule. तो हमें पता है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कभी भी, अगर बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड स्प्लिट हो रहा है तब भी. तो यहाँ पे इस लाइन को आप देख सकते हैं that chemical energy and basically these are converted into chemical energy, and this energy is being utilized in the splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and this whole process is called as photolysis of water. As the name suggests, photo means light and lysis means breakdown, यानी कि light की presence में जब भी हम breakdown कर रहे हैं water का, तो that will be photolysis of water. Then third most important step is, you can see here that the two major product which is being formed in the photolysis of water is oxygen and hydrogen. तो ये oxygen हमें कहाँ से मिल रहा है? You can just see this. यहाँ पर बहुत 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 important चीज़ देखने वाली, कि आप देखो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. 1 मिनट है ना, वो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. ओ भाई साहब, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर मॉलिक्यूल से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यू कैन से बाय प्रोडक्ट. इसका मतलब ये ऑक्सीजन कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है. इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता, राइट. एंड अलॉन्ग विद दैट हियर ये जो H+ आयन बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयन जो बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन करते क्या हैं? बेसिकली आपको मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो रहा है इस रिएक्शन में, और बनता क्या है? बनता है ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट. तो वहाँ पर ज़रूर दैट हाइड्रेट यानी जो वाटर है वो ऐड हो रहा होगा. अब वो कैसे होता है? देखो, यू कैन सी हियर दैट द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन एंड इज रिलीज्ड बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. मतलब जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये वाला, दिस हाइड्रोजन. अब आपको पता है रिडक्शन स्टेप क्या होता है? रिडक्शन स्टेप मीन्स wherever there is an addition of either hydrogen and removal of ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन ही बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड पे जाके ऐड हो जाता है, एंड ड्यू टू विच द कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड. अब ये रिड्यूस हो रहा है, किस में रिड्यूस हो रहा है? टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन फॉर्म इज ग्लूकोज एंड स्टार्च. स्टार्च इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट्स, राइट. सो हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात की, बिकॉज दीज आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड यू वोंट बिलीव दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर basically from the examination point of view, right. So this is the second step, right. Last most step is oxygen is being released as a byproduct due to the photolysis of water. यानी कि लाइट बेसिकली जहाँ पे भी लाइट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था और वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था. तो हम ऐसा क्यों कह दें दैट द ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं कहेंगे ना. तो हम ये नहीं कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है. द ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द वाटर, एंड स्पेसिफिकली वी कैन से फोटोलिसिस ऑफ वाटर, राइट. तो हमने देखी सारी बातें कर ली कि क्या मेन इवेंट होता है फोटोसिंथेसिस में, या क्या नेसेसरी कंडीशंस है फिर फोटोसिंथेसिस की, कहाँ होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग. But the main thing कि ये carbon dioxide is a gas, और we can just imagine a plant, right. Plant में ऐसे ही तो carbon dioxide नहीं घुसता होगा. There must be some space from where जो the carbon dioxide is entering, and that is the stomata. That means we need to study about stomata, right. तो stomata क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे.
So stomata is what? We have just defined already that these are the tiny pores which are basically present in the epidermis of leaf, yani upper and lower epidermis, and we can see stem, through which first thing is which is occurring is your gaseous exchange, and second thing is transpiration. Oh, transpiration. Wait, transpiration word भी आपने पहले पढ़ा हुआ है. As the name indicates, transpiration means is the loss of amount, very large amount of water from the leaf surface. जब भी leaf surface से there is some evaporatory process, or we can say evaporation होता है, तो water loss होता है from the plant surface, and that water loss, राइट ये जो वाटर लॉस हो रहा है ये बेसिकली डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट होता है. तो ये कैसे होता है ये भी हम देखेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट सी दैट व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा. तो पहला फंक्शन हमने बता दिया, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कौन सी गैसेस? Oxygen and carbon dioxide from in between the plant and atmosphere, right? Second important thing is the loss of large amount of water, and this large amount of water is being absorbed in the environment through water vapor, and ये process को हम transpiration बोलते हैं, right? So this is just a very much preview in with this क्वेश्चन. तो हम देखने वाले हैं कि अब बेसिकली स्टोमाटा क्या ऑल टाइम खुला रहता है या ये एक तरीके का जस्ट पोर है जिसके थ्रू हम ये बातें कह रहे हैं. सो ऐसा नहीं होता. स्टोमाटा बेसिकली कभी ओपन कभी क्लोज रहते हैं. तो ये कब ओपन कब क्लोज रहता है ये हम देखेंगे. सो बेसिकली अब सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टोमाटा इज जस्ट द ओपनिंग, और वी कैन से स्टोमाटल पोर. यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये ओपनड है. दो फिगर है आपके पास. फर्स्ट इज योर स्टोमाटा वेयर स्टोमाटा इज बीइंग ओपनड, सेकेंड इज स्टोमाटा इज बीइंग क्लोज्ड. अब स्टोमाटा ओपन जब है, यू कैन सी हियर देयर इज एन ओपनिंग, दिस इज स्टोमाटल पोर, और यू कैन सी स्टोमाटल अपर्चर. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सराउंडिंग सेल्स, जो ये स्टोमाटल पोर को चारों तरफ से घेर रखी हैं, ये सेल, दीज किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड सेल्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. तो इनको क्या कहते हैं हम? गार्ड सेल्स बोलते हैं, राइट? तो ये जो गार्ड सेल्स हैं, यू कैन सी दिस, दीज आर द गार्ड सेल्स, एंड दीज गार्ड सेल्स बेसिकली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. तो कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे कि बिकॉज पहला चीज़ तो ईच स्टोमाटल पोर, यानी हर जो ओपनिंग है स्टोमाटा की, दैट इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ किडनी शेप्ड और बंडल शेप्ड गार्ड सेल्स. सेकेंड थिंग इज द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर, यानी कि कब स्टोमाटा ओपन रहेगा कब क्लोज रहेगा, दैट होल विल बी कन्वर्टेड और वी कैन से कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स. एंड अब ये कैसे कंट्रोल होता है? मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते कि हैवी हो रहा है, बट ये कंट्रोलिंग इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग सेल्स, और वी कैन से ये वाटर की वजह से होता है. अब कहाँ? अगेन वाटर, राइट? अब यहाँ पे देखो, इन द फर्स्ट कंडीशन वेयर एट द स्टोमाटा इज बीइंग ओपन, यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है? फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स देयर इज एन इनफ्लक्स, और वी कैन से इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द गार्ड सेल्स. तो ये जो सराउंडिंग सेल्स है, जिसको हम एपिडर्मल सेल कह रहे हैं, ये जो सराउंडिंग सेल्स है, दीज एपिडर्मल सेल्स आर रिलीजिंग सम वाटर विच इज एंटरिंग इनटू द गार्ड सेल्स. अब गार्ड सेल्स में इतना सारा वाटर आ रहा है तो गार्ड सेल विल swell. So first step is कि when the water flows into the guard cells, so what happens? They get swelled up, and because of that they become curved and become swelled, which causes the opening of stomatal pore. You can just do this exercise with your hand. Just make the palm closed, right? तो अपने दोनों हाथों को जोड़िए, उसमें से फिर then swell them up, right? दोनों को अगर दूर कीजिए तो there will be a pore, or we can say gap. That pore which is being caused in between your palm, these pores are called as stomatal pores, or these are the stomatal curvatures, right? तो हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा again, तो हमने देखा कि ये स्वेलिंग हो रही है बिकॉज ऑफ वाटर इनटेक और वाटर गेन. अब हम कह रहे हैं कि अगर मुझे फ्लैसिड करना है, यानी कि फ्लैट करना है, तो ये वाटर लूज भी होगा. यस, तो गार्ड सेल्स ऑल्सो लूज वाटर एंड दे बिकम श्रिंक, दे बिकम स्ट्रेट, और वी कैन से दे बिकम फ्लैटेंड, एंड दैट कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमाटल पोर. सो हमने क्या कहा कि यहाँ पे स्टोमाटल पोर की क्लोजर हो गई. तो क्या ऑल टाइम बेसिकली स्टोमाटा ओपन रहता है? सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि डे टाइम में स्टोमाटा बेसिकली ओपन रहता है, एंड ड्यूरिंग द नाइट, सो ड्यूरिंग नाइट द स्टोमाटा रिमेन क्लोज्ड. क्यों क्लोज? बिकॉज देयर इज
वेरी लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग नाइट, तो उस टाइम पे गैसेस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेटरी लॉसेस ये क्या होता है, बंद हो जाता है। तो हमने ये देखा कि बेसिकली कैसे गार्ड्स के थ्रू वाटर का इनटेक, वाटर का रिलीज ये स्टोमेटल पोर को ओपन एंड क्लोज कर रहा है।